સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ आज की जय 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 धाम धमी मुक्तो की जय 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 सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय 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 जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नारोम सुछिद्र मानुषमा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवाक्षरधामनाधिपति श्री स्वामिनारायण महाध्यानाभ्यासं विदतजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम् वाणी अमृतथी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टिमा भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा हइये हेत भर्यु मीठू जननीसु नेहास्य मुखे वस्यु हे श्री ज्ञान जी योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे जे थे शांत प्रशांत सागर समा
સાધુ ગુણે જે શોભતા, જેના દર્શનને સમાગમ થકી શાંતિ સહુ પામતા, જે છે માનસ પુત્ર કાકાજીના ને ભજનમાં લીન રહે, એવા સાધક વૃંદના ગુરુ સુરત વંદન ભરત ભાઈની. ભક્તિ સભર ગુલતાન થઈને મહાપૂજા જે કરે, અનુવૃત્તિ અદભૂત જાળવી રીઝવ્યા કાકાજીને. મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયો યુવાનોને જે ગમે, એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો વસી ભાઈની. બ્રહ્મરૂપ નિજની માનતા વળી શ્રીજી હૈયે ધારતા, જે મસ્ત રહીને પ્રભુ ભજનમાં સુરદ ભાવ ધારતા. મહિમા સભર દાસત્વ છલકે જીવનમાં છે સજતા, કાકા સ્વરૂપ દિનકર વિભુ સંભારવામાં ધન્યતા. બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. स्वामी की बात तो प्रकरण 8 14वां प्रकरण 14वीं बात है. 14वीं ओके. प्रकरण 8 और 14th बात. अच्छा 14 हाँ 14th. करो शुरू. हाँ जी. પ્રથમ તો સર્વ સંકલ્પને પડતા મૂકીને એકાગ્રચિત્ત થઈને શ્રી મહારાજ પુરુષોત્તમને સંભાળીને એમ ધારવું છે સ્વામી વાંચું કરે છે ને આપણે સાંભળીએ છીએ એમ સાંભળવું, ને તે પ્રમાણે અંતરમાં તપાસ કરતા જવું ને કહ્યું છે તેમ સમજીને વર્તવું. अभी आ रहे हैं आपको आवाज? हाँ आ रही. आवाज आ रहे? हाँ आ रही है आवाज आ रही है. પ્રથમ તો સર્વ સંકલ્પને પડતા મૂકીને એકાગ્રચિત્ત થઈને શ્રીજી મહારાજ પુરુષોત્તમને સંભાળીને એમ ધારવું છે સ્વામી વાત કરે છે ને આપણે સાંભળીએ છીએ એમ સાંભળવી ને તે પ્રમાણે અંતરમાં તપાસ કરતા જવું, એ કહ્યું છે તેમ સમજીને વર્તવું. પ્રકરણ 8 14વી વાત. સ્વામિનારાયણે સવી વાત કરી શબ્દે કરીને સાધુ થકી જ્ઞાન પામીને દેહ બંધાય છે, પછી દેહ ગુણ સૃષ્ટિના દેહની ઉત્પત્તિની લઈને કડવીનો દીકરો કહે કે હું કડવી છું, બ્રાહ્મણનો દીકરો કહે કે હું બ્રાહ્મણ છું, એમ ઉદ્ધવ નીચ જાતિમાં જાજા જલ્પે તેનું અભિમાન લઈને દેહાંત સુધી બોલે છે તે સદગુરુ શબ્દાતીત પરમ પ્રકાશ રહે, યાકે ચરણે જાય અવિદ્યા નાશ રહે, એવા શબ્દે કરીને બ્રહ્મરૂપ ગુરુને ચરણે થયો એ મન કર્મ વચને શુદ્ધ ભાવે જોડાનો તે એમ માને છે એ સદગુરુને જેવા મેં બ્રહ્મરૂપ જાણ્યા તેવા જ તેને સજાતી હું કહી રહ્યો છું. તે પ્રથમના 58ના વચનામૃતમાં કહ્યું છે જે સત્પુરુષને નિષ્કામી નિર્લોભી નિસ્વાદી એવા જેવા જાણે તેઓ પોતે થાય છે. તે પ્રથમના 14માં કહ્યું છે જે સંતનો સમાગમ મળ્યો છે તે તો પરમ ચિંતામણી એક કલ્પવૃક્ષ મળ્યા છે, માટે હું કૃતાર્થ થઈ રહ્યો છું. એમ હમણાં જેવી ગતિ છે તેવી ગતિ થાય છે. તથા સારસ્વતના 10ના વચનામૃતમાં કહ્યું છે જે સંત સમાગમમાં પડ્યો રહે ને અપમાન સહન કરે તો તે સમજણવાળા સંત જેવો જ તેને જાણો, તે તેના જેવી તેની પ્રાપ્તિ જાણવી. તથા સૌવરી ને કરતા પૂછીને દ્રષ્ટાંતે જેવા ભક્ત મળે ને તેના જેને હેત થાય તેના જેવું જ તેનું કલ્યાણ થાય. એ પ્રથમના 75માં એ બીજે ઘરે ઠેકાણે કહ્યું છે. માટે સાક્ષાત અક્ષર બ્રહ્મના સાધર્મપણાને પામીને બ્રહ્મ સ્વરૂપે વર્તતા એવા સંતને મહારાજે પોતાની મૂર્તિ કહી છે.
તથા પોતાનું સ્વરૂપ કહ્યું છે તથા એવા સંતને પૂજે મહારાજ તથા અક્ષરધામ અને અક્ષર મુક્તો પીરાઈ રહ્યા તથા એવા સંત મળ્યા સ્વામી સ્વામી એટલે કે સદાનંદ સ્વામી કાંઈ નવ રહી એમ કહ્યું તથા વચનામૃતમાં કહ્યું છે એવા સંતને દર્શને અનંત પતિ જીવનો ઉદ્ધાર થાય છે તથા એવા સંતની સેવાએ સાક્ષાત ભગવાનની સેવા થાય છે તે એવાનું દર્શન થયું ત્યારે સાક્ષાત ભગવાનનું દર્શન થયું એ કામ કહ્યું છે હવે જેવા ગુરુને સેવે છે તેવું શિષ્યમાં દૈવત આવે છે માટે તેને ગુણાતીત થવું હોય એ ગુણાતીત એવું જે અક્ષરધામ તેને સાક્ષાત પામવું હોય તે અખંડ પુરુષોત્તમ ભગવાનની સેવામાં રહેવું હોય તેને આ બરાબર બીજું કાંઈ નહીં. करूँ आगे? नहीं, 1 मिनट. अभी इसका हम थोड़ा चिंतन मनन करेंगे. यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने किस किस मुद्दों को उन्होंने आत्मसात करने के लिए बोला है, क्योंकि यदि हम चिंतन मनन नहीं करेंगे और बिना चिंतन मनन किए हम आगे चले जाएंगे तो हमारी बुद्धि हमें क्या बताएगी कि मुझे सब समझ में आ गया, सारे मुद्दे जो है वो मुझे समझ में आ चुके हैं. यहाँ पे अलग अलग मुद्दे लिए हैं. सबसे पहला जो मुद्दा लिया है वो है स्वयं को देहरूप मानकर, यदि हम स्वयं को देहरूप मानकर ही आगे चलते हैं तो क्या होएगा, हम वर्णों में बढ़ जाएंगे. मैं ब्राह्मण हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, हाँ, मैं वैश्य हूँ, मैं जाति से क्षत्रिय हूँ, या तो मेरा धर्म ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, वैष्णव संप्रदाय से आया हूँ, मैं शिवपंथी हूँ, मैं शाक्तपंथी हूँ, मैं शक्तिपंथी हूँ. तो जब जहाँ पे देह से देह का दर्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि आप आगे नहीं बढ़ती, पर ऊपर से उलट आप पाप के भागी होते हैं. क्योंकि गुणातीत ज्ञान में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं यदि आपने देह मानकर देह का ही ध्यास किया है तो क्या होएगा कि आपका पाप कर्म ही आगे बढ़ता जाएगा, आप पुण्यशाली नहीं बन सकोगे. इसलिए सबसे पहला मुद्दा ये लिया है कि देहाध्यास को त्याग दो, और दूसरा मुद्दा लिया कि देहाध्यास त्याग के मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वो सब भूल के मुझे एक ही बात याद रखनी है कि मैं ब्रह्मरूप हूँ. यदि मैं ब्रह्मरूप हूँ करके हम इस सोपान में आगे चलेंगे तो ही हमारी प्रगति संभव है. ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने प्रतिपादित की कि देहरूप होकर क्षत्रिय वैश्य में हम बटे रहेंगे और वही देहाध्यास में ही चलते रहेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होने वाली, कितनी भी हम सेवा कर ले और कितना भी स्वाध्याय कर ले. तो सबसे पहला मुद्दा तो ये बताया कि हमें किससे बचना है. दूसरा मुद्दा बताया कि जो गुणातीत सत्पुरुष जो हमें मिले हैं उसको हम निष्कामी मानते हैं तो हम निष्कामी हो जाएंगे तुरंत, तत्काल. वो एक रहस्य बताया कि हम कैसे भी कितने भी पापी होंगे, या तो हमारी आसक्तियाँ कितनी भी पंच विषयों के अंदर, या तो हम कितने भी पंचेंद्रियों के गुलाम भी क्यों न होंगे, पर यदि हम सामने जो हमारे सामने जो उपस्थित ऐसे जो संत है उसको यदि हम निष्कामी और गुणातीत मानेंगे तो हम भी उनके संबंध से गुणातीत हो जाएंगे. ये था उनका इसी बात का दूसरा मुद्दा कि गुणातीत मानो, निष्कामी मानो तो आप इसी क्षण से उस पायरी के ऊपर आगे सड़सड़ाट चलने लगोगे और उस क्षण से आप निष्कामी भी हो जाओगे और गुणातीतपना की यूनिवर्सिटी में आप सड़सड़ाट आगे बढ़ जाओगे, पाप रहित भी हो जाओगे और पुण्य के भागीदार हो जाओगे. तो ये दूसरा मुद्दा था. तीसरा मुद्दा क्या बताया कि संत के माध्यम से ही पूर्ण पुरुषोत्तम सामने प्रकट हुए हैं. मतलब कि मनुष्य भाव तो निकाल ही देना है, दिव्य भाव में स्थित हो जाना है. खुद का मनुष्य भाव
और संत के अंदर का मनुष्य भाव, दोनों भाव को निष्कासित करना है, उससे परे उठना है। और जब हम परे उठ जाते हैं तो उनको दिव्य मानते हैं, और दिव्य मान के संत के माध्यम से ही पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी प्रकट हो रहे हैं। यदि ऐसा हम मानते हैं तो हम गुणातीत भाव को प्राप्त करके अक्षरधाम के अधिकारी हो जाएंगे, और पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा जो जो हम करेंगे उसके अधिकारी बनेंगे। तो ये 3 बात एक ही बात में बता दी उन्होंने, यहाँ पे अलग अलग बात नहीं कही है। यहाँ पे एक ही बात में उन्होंने 3 अलग अलग मुद्दे ले लिए हैं। एक तो स्वयं का और सामने संत है दोनों का मनुष्य भाव को हटाना, दूसरा मैं ब्रह्मरूप हूँ और सामने जो संत है निष्कामी गुणातीत है उसकी धारणा करनी, और तीसरी धारणा जो संत मिले हैं उसके ही माध्यम से मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे सामने प्रकट हुए हैं, वो बात यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, 10 मिनट के पहले। हाँ। તમિળનાડે સમય વાત કરી સંવત 1911ની સાલમાં શ્રી રઘુવીરજી મહારાજે વડતાલમાં પ્રથમવાર સત્સંગી જીવનની કથા કરાવી, જેમાં સ્વામીને 4 માસ રાખીને સભામાં પુરુષોત્તમપણાની વાતો કરવા ઠેરાવ કર્યો. એક દિવસે સ્વામીએ પતનાની અને મહિમાની બહુ જ વાતો કરી. કહ્યું છે હજુ સત્સંગ ક્યાં થયો છે, આપણે પણ પૂરા સત્સંગી ક્યાં થયા છીએ. મહારાજે કહ્યું છે કે તપ, ત્યાગ, યજ્ઞ, અષ્ટાંગયો એ આદિ કોઈ સાથે હું વશ થતો નથી. એવો સત્સંગે વશ થાઉં છું. એ સત્સંગ એ શું? એ મહારાજે છેલ્લા પ્રકરણના 39ના વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે સત્યરૂપ એવો જે સત્તાનો આત્મા અને સત્યરૂપ જે ભગવાન, તેનો નિરંતર તેને સંગ થયો, તેને સત્સંગી જાણવો, તે એવા સત્સંગી કરવા સારું મહારાજ આ લોકમાં આવ્યા છે. માટે આપણે તપાસી જોવું કે આપણને આત્મા અને ભગવાનનો નિરંતર જોગ કેટલો રહે છે. ને એવું નથી થયું ત્યાં સુધી ભલે ને ભોગવું કર્યું કે સદગુરુ કહેવાયા તો પણ કાચું જ જાણવું. હજુ ખરા ગુરુ જ ક્યાં કર્યા છે. એ પ્રકારે સ્વામીની વાત સાંભળીને ભંડારાઓએ ની પાસે કરીને કહ્યું છે સદાનંદ સ્વામી બહુ આગવી વાતો કરે છે. જે મોટા સદગુરુ કહેવાતા હોય તો પણ સાચું છે, ત્યારે તો આપના શા હાથ માટે આવતીકાલે તમે વાતો કરજો. આથી બીજે દિવસે વાતો કરવા માંડ્યા. પછી તે જ રાતે મહારાજને દર્શન કરી કહ્યું ધરાવતો 4 માસ સદાનંદ સ્વામીએ વાતો કર્યાનો છે, માટે કાલથી બીજા પાસે વાતો કરાવવી નહીં. સવારમાં શ્રી રઘુવીરજી મહારાજે આ સર્વે વાત વિધિ કરી. એ સાંભળીને સ્વામીએ હાથ જોડીને કહ્યું કે મહારાજ, મારે પણ સ્વામીની વાતો સાંભળવી છે, પણ આ તો ભંડારા સર્વે ભેળા થઈને મોહ કરી મને બોલ્યો, એટલે હું વાતો કરવા બેઠો. પછી કથા પૂરી થઈ એટલે સ્વામી વાત કરવા બેઠા. એ બોલ્યા છે મહારાજે લોહિયાના 6માં કહ્યું છે કે સત્સંગ થયા પછી એકાંતિકપણું આવું એ દુર્લભમાં દુર્લભ છે. તે એકાંતિકપણું પામવા સારું કરવા જોઈએ. એટલું જ અમે તો બોલ્યા હતા, બધું આકરું તો હજી કાંઈ કહ્યું નથી. પણ મહારાજે તો મધ્ય પ્રકરણના 47ના વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે આગા પાછાની લાલચે એ લુગડાની લાલચે, મનગમતા પદાર્થની લાલચે સંત ભેગો રહે તો તેને લંબાડ જેવો ને મળી આશયવાળા જાણવું. વળી પ્રથમ પ્રકરણના
37 વચનામૃતમાં મહારાજે ભગવાનના પ્રતાપને નહીં જાણનાર ભગવાનના પ્રતાપને નહીં જાણનારાને જળમતી અને મૂર્ખ કહ્યા છે. તેમજ તે ત્યાગીને સંબંધીઓમાં પ્રીતિ અને કામના છે તેને મહારાજે છેલ્લા પ્રકરણના 19 વચનામૃતમાં પશુ જેવો કર્યો છે. ફરી પ્રથમના પ્રકરણના 20 વચનામૃતમાં પોતાના સ્વરૂપને નહીં જોનારને અજ્ઞાનીમાં અતિશય અજ્ઞાની, ગેલામાં અતિશય ગેલો, મૂર્ખમાં અતિશય મૂર્ખ, સર્વ નીચમાં અતિશય નીચ કયો છે. માટે પોતાના જેવું જેને આધ્યાત્મિક કલ્યાણ કરવું હોય તેને તો ખૂબ વિચારવું જોઈએ ને કડવા વેદ કહ્યા વગર કોઈ જીવનો રોગ જાતો નથી. કેમ કે અતિ આદર્યું કામ અતોડ પરલોક પામવા ક્યારેક ઘડી કરી જોઈએ કોળ્ય વિધનને વામવા. માટે સાચી સમજણ તો બધાએ કરવી જોઈએ. હવે જુઓ, અત્યારના પ્રકરણના 9 વચનામૃતમાં મહારાજે શ્રી મુખે કહ્યું છે કે મને બીજા અવતાર જેવા જાણે તો મારો દ્રોહ કર્યો કહેવાય. જેમ નિરાકાર જાણવાથી ભગવાનના સ્વરૂપનો દ્રોહ થાય છે, તેમજ મહારાજને બીજા અવતાર જેવા જાણવાથી પણ મહારાજના સ્વરૂપનો દ્રોહ થાય છે. વળી બ્રહ્માંડ પર 10 રહી છે એવા અનંત કોટી બ્રહ્માંડ તો મહાવિષ્ણુના રોગનો પ્રત્યે રહ્યા છે. એવા જે મહાવિષ્ણુ તે પ્રધાન પુરુષ તે મૂળ પ્રકૃતિ પુરુષ થકી અસંખ્ય કોટી ઉપજે છે અને લઈ પામે છે. તે મૂળ પ્રકૃતિ પુરુષ પણ જે અક્ષરધામની કળા શક્તિએ કરીને બુદ્ધાની જેમ પણ ત્યાં પ્રગટ થઈ આવે છે અને અક્ષર બ્રહ્મના પ્રકાશમાં લઈ પામી જાય છે. એવો જે મૂર્તિમાન અક્ષરધામ એ સહજાનંદ સ્વામીના દાસ એ અક્ષર બ્રહ્મથી પર એ ન પણ આત્મા એવા પ્રગટ પુરુષોત્તમ નારાયણ જે સર્વ અવતારના અવતારી, સર્વથી પર, સર્વના પ્રેરક, નિયંતા એ સ્વામી છે. માટે એમને પૂજા કોઈ જેવા કહેવાય જ નહીં. કેમ જે મૂળ પ્રકૃતિ પુરુષ પર્યંત સર્વે જે આકૃતિઓ છે તે કાર્ય કરીને નાખે. એ જ્યાં સુધી એમ સમજ તે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ સાંભળો વાત કહું એક છાલી ના ઉત્તરવર નંદ લાગણી સાચી કહું વાંચો મારી પેલી ઉત્તર શ્યામ ગયા તને મેલી. એ 14 પદમાં એ લીલા વર્ણન કર્યું છે. માટે એ અક્ષરધામમાં વેદરસમાં મહારાજે કહ્યું છે કે અક્ષરધામ વિના બીજા સર્વે ધામો પૂર્વય છે. એમાં કાળ માયાનો ભય રહ્યો છે. બંધ પ્રકરણ 49 વચનામૃતમાં ઉપનિષદના વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે પ્રત્યક્ષ ભગવાન પૂજા જે માઈ આકાર તેમાં તો બહુ જ ફેર છે. એ ફેર શું? તો અન્ય અવતાર માત્ર પ્રકૃતિ પુરુષની મોરા જાણવા તે છે. માટે અક્ષરધામ એ 3 વિના જે લોક છે અને એ લોકના દેવ તે દેવના જે વૈભવ તે સર્વે નાશવંત છે. વળી મનુષ્યને દેશ જેવો કે સર્પ જેવો કે ચરકલા જેવો કે ગધેડા જેવો કે કૂતરો જેવો, કાગડા જેવો કે હાથી જેવો છે એવી ઉપમા ન સંભવે. કેમ કે મનુષ્ય થકી તે બીજાથી છે. મહારાજને બીજા કોઈની ઉપમા દેવાય નહીં અને એ મહારાજના ધામને પણ બીજા કોઈની ઉપમા દેવાય નહીં. કેમ જે પુરુષ પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન થયા જે આકાર માત્ર તે સર્વે માયિક છે. તે મહારાજ અને અક્ષરધામ જે અક્ષર મુક્તો દિવ્ય અને અમાયિક છે. માટે એ સર્વે માયિક આકાર જે ભગવાનને વિશે અતિશય વિલક્ષણ પડો એના બીજાથી પડો જાણવું એ દેને સાદૃશ્ય પડવું કેમ કહેવાય? આવી ભગવત સ્વરૂપની પાત્રતા હશે અને તેથી જો કદાચિત સત્સંગ બહાર દૃષ્ટિ જોવાય તો પણ તેને ભગવાનની
મૂર્તિમાંથી એક ટળતું નથી અને હમણાં સત્સંગથી બહાર છે તો પણ દેહ મૂર્તિને તો અંતે ભગવાનનું જે અક્ષરધામ તેની વિશે ભગવાનની સમીપે જશે ને હમણાં સત્સંગમાં રહેતો હશે તો શાસ્ત્રના વચનમાં પણ રહેતો હશે પણ જો તેને આ કહી એવી મહારાજને વિશે બાકી નિષ્ઠા થઈ હોય તો તે જયારે દેહ મૂકશે ત્યારે કાં તો બ્રહ્મના લોકમાં જશે પ્રકરણના 49 વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે પ્રત્યક્ષ ભગવાન અને બીજા જે માયિકાકાર તેમાં તો બહુ જ ફેર છે. તે ફેર શું તો અન્ય જીવો અવતાર માત્ર પ્રકૃતિ પુરુષની હોરા જાણવાનું તે છે. માટે અક્ષરધામ મુક્ત અને પુરુષોત્તમ એ ત્રણ વિના જે લોક છે અને એ લોકના દેવના જે વૈભવ એ સર્વે નાશવંત છે. વળી મનુષ્યને દેહ જેવો કે સર્પ જેવો કે ચરકલા જેવો કે ગધેડા જેવો કે કૂતરા જેવો કે કાગડા જેવો કે હાથી જેવા છે એવી ઉપમા ન સંભળે. કેમ જે મનુષ્ય થકી તે વિરાજીએ છે તે મહારાજને બીજા કોઈની ઉપમા દેવાય નહીં અને તે મહારાજના નામને પણ બીજા કોઈની ઉપમા દેવાય નહીં. કેમ જે પુરુષ પ્રફુલ્લિત ઉત્પન્ન થયા તે આકારમાંથી તે સર્વ માયિક છે. મહારાજ નામ અને અક્ષર મુક્તો દિવ્ય અને અમાયિક માટે એ સર્વે માયિક આકાર અને ભગવાનને વિશે વિલક્ષણ પડું વિના જાતિ પડું જાણવું એ બેને સાદૃશ્ય પડું કેમ કહેવાય. આવી ભગવત સ્વરૂપની પાકી નિષ્ઠા હશે અને તેથી જો કદાચિત સત્સંગ બહાર નીકળી જવાય તો પણ એને ભગવાનની મૂર્તિમાંથી અને હમણાં સત્સંગથી બહાર તો પણ દેહ મૂકીને તો અંતે ભગવાનનું જે અક્ષર નામ તેની વિશે ભગવાનની સમીપે જશે ને હમણાં સત્સંગમાં રહેતો હશે શાસ્ત્રના વચનમાં પણ રહેતો હશે પણ જો તેને આ કહી એવી મહારાજને વિશે અતિ શુદ્ધ પાકી નિષ્ઠા નહીં હોય તો તે જ્યારે દેહ મૂકે ત્યારે કાં તો બ્રહ્મના લોકમાં જશે ને કાં તો કોઈ બીજા દેવતાના લોકમાં જશે પણ એ પુરુષોત્તમ નારાયણના અક્ષરધામની વિશે નહીં જાય. એ મહારાજને કહેવાનો હાથ છે. સ્વરૂપ નિષ્ઠાના બળ ઉપર એક વાત છે. કોઈ મુસલમાન બાદશાહે એક હિન્દુ બ્રાહ્મણી બાઈને ઉપાડી જઈ એની સાથે લગ્ન કર્યું પણ એ બાઈને શંકરની પાકી ઈચ્છા તેથી દરરોજ શંકરની પૂજા કરવાની તેને રજા મળી. પછી ધીમે ધીમે બાદશાહને સમજાવી ગામમાં શંકરનું દેવાલય પણ બંધાવ્યું. એમ કે બાઈ અનન્ય ભાવે પૂજા પસંદ કરી. આથી તે બાઈના મરણ સમયે શંકર તેડવા આવ્યા ને તે બાઈનો પહેલા શ્વાસ. આમ નિષ્ઠા હોય તો યુદ્ધવાણી વટીને મુસલમાન થઈ તો પણ એના અંતરમાંથી શંકર સ્વરૂપની જે દ્રઢ નિષ્ઠા હતી ટળી નથી. કેમ કે આ દેહ તો પૂર્વ કર્મને આધીન છે. તેનો એક નિર્ધાર રહેતો નથી. તો પણ પાકી નિષ્ઠાવાળાના જે ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય ભક્તિ તેની રક્ષાને તો ભગવાન પોતે જ કરે. ત્યારે દેશકાળના વિષમ પડે કરીને મહારાજથી તો તે ધર્મના અંગ જેવું ગણાય પણ તે ભક્તના અંતરમાં તો ધાર્મિકનો ભંગ થતો જ નથી. માટે આપણે સૌને મહારાજ અનંત નિષ્ઠા પાકી કરવી પડે. એવી રીતે સ્વામીની વાતો સાંભળીને તો સ્વામીએ ભાઈઓ આ મધ્ય પ્રકરણનું નવું અસર મહારાજના વૃક્ષો શ્રવણ કરીને એ જાતે કર્મ છે તે શોધ્યું પણ મેં છે પરંતુ તેનો ઉદાર્થ મર્મ તો આજે સ્વામીએ અન્ય વચનો સાથે કયો ત્યારે સમજાયું. એ સાંભળીને સ્વામી બોલ્યા છે એ તો એવું હોય માટે આપણે સૌએ મહારાજને સર્વોપરી સહન કરવું. આ વખતે 4 માસ સુધી વાસળી
14 લોકો ધ્વનિ સાંભળી શુદ્ધ શંકર કેરુના એ રીતે સ્વામીની પુરુષોત્તમ મનાની પર વાતોનું વાતચીત મોટા મોટાના અક્ષરો ભેદાઈ ગયા હતા. हाँ जी, ये बात नंबर 15 प्रकरण 8 उसमें गुणातीतानंद स्वामी ने मुख्य मुद्दा उठाया है कि यदि आपने ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की साधना शुरू की है तो वो साधना कैसी होनी चाहिए. अभी यहाँ पे साधना का स्वरूप बताया हुआ है. आगे की बात में बताया कि ब्रह्मरूप होकर मुझे जो स्वयं संत मिले हैं वो परब्रह्म ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे सामने उपस्थित है, उसकी बात कही. तब हम अक्षरधाम को प्राप्त कर सकते हैं. पर साधना कैसी होनी चाहिए उसकी बात नंबर 15 में बताई है. वहां पे उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है अति शुद्ध और पक्की निष्ठा हो. कभी अक्षरधाम मिल सकता है. हमारी साधना कैसी होनी चाहिए जिसमें हमारी अति शुद्ध और पक्की निष्ठा हो, उसकी बात कही. तो उसके लिए वो साधना कैसी, उसके लिए उन्होंने बताया है कि तप हो, त्याग हो, यज्ञ हो, व्रत हो या तो अष्टांग योग हो, उससे मैं वश नहीं होता. अभी यहाँ पे पूरा मुद्दा साधना के ऊपर फोकस किया है कि यदि आप स्वयं को आत्मस्वरूप मानते हो और सामने जो मिले हैं वो स्वयं परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम मिले हैं, वो मानकर जब आगे और एक कदम उठाते हो तो क्या करना होगा. क्योंकि महाराज के समय में बहुत सारे फिरके थे और हर एक की अपनी अपनी मान्यता थी, हर एक का अपना अपना पंथ था और वो पंथ में जो जो मान्यताएं थी वो मान्यता को लेकर वो आए थे. तो यहाँ पे महाराज ने ये सब का त्याग करने को कहा है कि आप जो मानकर आज तक चलते आए थे, वो जिसको भी आपने माना, वो महाराज ने उनके धाम का वर्णन करते हुए कहा कि ये सब माइक जगत है. आपने आज तक जो भी साधना की है वो आपको कौन से गंतव्य स्थान में लेके जाएंगे, वो सारे गंतव्य स्थान अक्षरधाम के अलावा जितने भी स्थान हैं वो सब माइक है. पहले तो ये बात गले उनके उतार दी कि जब आप अपने आप को ब्रह्मरूप मानते हो और जब ब्रह्मरूप मान के सामने वाले जो संत मिले हैं उसको परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम मानते हो, तो साधना कैसे करनी, उसका मार्ग प्रशस्त किया है कि जो आज तक के मार्ग में जो अपने जप, व्रत, तप, दान वगैरह जो कुछ भी किया, अष्टांग योग वगैरह, अष्टांग योग, प्राणायाम वगैरह जो कुछ भी किया, उससे मैं वश होने वाला नहीं हूं. वो स्पष्ट रेखा उन्होंने वहां पे अंकित कर दी कि मैं ये सबसे खुश होने वाला नहीं हूं, ये मेरी पद्धति नहीं है. वो कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं ना, ये घंटा बजाने वाला मंदिर नहीं है, ये भागवत कथा सुनने वाला पंथ नहीं है, ये अष्टप्रहर दौड़ दौड़ के मूर्ति का दर्शन करने का पंथ नहीं है, ये टीला टपका करना और वो साधना के लिए कुछ पाठ का पठन करके मुंह पाठ बोल जाना, वो पंथ भी नहीं है. बोलते हैं ना कि जात जात के पद होते हैं, वो जात जात के पदों बोल के गा के कंठस्थ करके एकदम नहा धो के शुद्ध होके हाथ में माला लेके सब दुनिया भर के पद बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, तो कि अति शुद्ध पक्की निष्ठा चाहिए. कैसी निष्ठा, वो भी पक्की निष्ठा कि मैं जिस अक्षरधाम को प्राप्त करने वाला हूं वो माइक नहीं है. दूसरी बात कही कि वो अक्षरधाम को यदि आप प्राप्त करोगे तो वहां पे मैथुनी ग्रंथि नहीं, मतलब स्त्री और पुरुष वहां पे है ही नहीं. भले ही मानव रूप में आप वहां पे उपस्थित होगे, लेकिन वहां पे वो ग्रंथि नहीं. मतलब कि माइक जगत में ये सारी ग्रंथियां है और स्त्री और पुरुष का भेद चलते ही रहता है. ब्रह्मरूप होने के बावजूद वहां पे माइक जगत की उपस्थिति है
और वो क्या है, जन्म मरण का चक्रावा ही है। वो बात यहाँ पे सिद्ध की है कि मेरे पास में आना है तो मेरे सिलेबस में सबसे पहले तो ब्रह्मरूप होकर जो प्रकट मिले हैं वो प्रकट की आराधना को आप स्वीकार करो। और दूसरी बात, सत्संग को वश होता हूं। उन्होंने सत्संग के ऊपर भार क्यों दिया? क्योंकि ज्ञान योग के बिना आपकी कोई भी भक्ति आपको फल नहीं देगी। दूसरा, मुझे कहाँ जाना है और वहां पे क्या उपलब्धि है, वो उपलब्धि का क्या फायदा है वो जाने बगैर मैं उसको एकदम घनिष्ठता से, पक्की निष्ठा में मैं रत नहीं होऊंगा। कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, हमेशा मेरा कंपैरिजन ही चलता रहेगा और उस कंपैरिजन के वजह से हो सकता है पतन भी हो जाए। तो ये पतन ना हो, इसलिए पहले से ही शुरुआत में ही फर्स्ट स्टेप में ही बता दिया कि आज तक जो करते आए थे उस तरह नहीं, पर यहाँ पे जो गुणातीत संत जिस तरह से सत्संग करते हैं वो सत्संग को आप नियमित रूप से निरंतर करोगे। क्या बोला? नियमित रूप से निरंतर करोगे तो ही यहाँ पे बताया है आत्मा को, स्वयं को आत्मा और सत्यरूप ऐसे जो भगवान, उसका निरंतर जिसका संग हुआ है उसको ही मैं सत्संगी जानता हूं। आप जप, व्रत, तप, दान, यज्ञ, हाँ, वो कथा पारायण वगैरह करोगे तो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे किसमें इंटरेस्ट है? तो क्या सत्संग में। और कौन सा सत्संग? जो मेरे संत बता रहे हैं वो सत्संग। वो भी किस तरह का सत्संग? तो कि स्वयं को आत्मा मानते हैं और सत्य स्वरूप भगवान जो मेरे सन्मुख बैठे हैं उस तरह से निरंतर संग हुआ हो। निरंतर मतलब इस जन्म के आखिरी श्वास तलक जिसका इस संत के साथ में जोग हुआ हो उसको ही मैं सत्संगी मानता हूं। तो बाकी अन्यों का कोई यहाँ पे स्थान नहीं है, अक्षरधाम में स्थान नहीं। फिर दूसरी बात बताई उन्होंने, माइक और अमाइक की बात बताई। वो भी स्पष्ट रूप से बताई कौन से लोक है और कौन से लोक में जाने से कौन सा आपको वैभव या ऐश्वर्य प्राप्त होएगा। फिर भी वो जन्म मरण का खेला ही है। वो बात स्पष्ट की कि बाकी सब जगह पे माइक जगत होने की वजह से यहाँ पे मैथुनी ग्रंथि है पर अक्षरधाम में मैथुनी ग्रंथि नहीं है। और उपरांत उन्होंने एक मुद्दा कहा कि ये निरंतर संग क्यों करना है, उसका कारण बताया है कि सत्संग होने के बावजूद एकांतिकपना खुद में स्थापित होना वो अति दुर्लभ में दुर्लभ है। तो यहाँ पहले ही हिमालय बता दिया कि आपको जहां पहुंचना है वो हिमालय है, वो कितना ऊंचा है और उसकी जो आप यात्रा कर रहे हो वो कितनी कठिन है। तो वो कठिनता बता दी कि सत्संग होने के बाद पहले तो सत्संग करना है निरंतर, वो बता दिया। फिर वो सत्संग कैसे करना है कि सत्संग होने के बावजूद भी एकांतिकपना प्राप्त करना तो वो दुर्लभ में दुर्लभ है और उसके लिए आपको ऐसे गुणातीत गुरु ही चाहिए। उसके बगैर काम नहीं होएगा, उसके बगैर काम होने वाला नहीं। तीसरी बात कि महाराज को कैसे जानना, तो कि यदि अवतार जैसे जानते हो तो महाराज का द्रोह हो गया। तो क्या नहीं करना, पहले क्या बताया क्या करना है, और जो हम कर रहे हैं उसमें यदि महाराज को अन्य अवतार के जैसे मानोगे तो महाराज का द्रोह किया ऐसा माना जाएगा। तो वो भी यहाँ पे वर्जित किया है कि महाराज को गलती से भी अन्य अवतार के जैसा बताना मत, क्योंकि वो सर्वोपरि है। और आगे चलते चलते जैसे जैसे आपको आत्म साक्षात्कार होएगा, आपको और ज्ञान होएगा, आपको और संत के साथ में समास होएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये पंथ कुछ अलग है। आज तक जो मैंने किया है वो हिसाब से यहाँ पे कोई बात नहीं है। उपरांत उन्होंने और भी बताया कि आपको अक्षर मुक्त होना। कैसे अक्षर मुक्त होना है कि महाराज और अक्षरधाम और उनमें बसे सारे अक्षर मुक्त दिव्य है और अमायिक है।
क्या मानना है? महाराज के संत और अक्षरधाम के मुक्त सभी दिव्य है और वो सभी अमायिक है। मतलब जीते जी ये स्थिति पहुंचनी है। जीते जी जो भी भक्त है या तो जो भी मुक्त है या तो जो भी महाराज का अक्षरधाम है वो सभी दिव्य है और अमायिक है। तो वो अमायिक और मायिक के बीच में जो पर्दा है वो पर्दा जानने की बात है, यहाँ पे होश में आने की बात है। और जब हम होश में आते हैं तो महाराज हमें शुद्ध पक्की निष्ठा की ओर लेके जाने के लिए यहाँ पे प्रतिबद्ध है। तो गुणातीतानंद स्वामी ने उसके लिए अलग अलग जो वचनामृत है उसका यहाँ पे उदाहरण दिया है कि महाराज का क्या मत है, और उस मत के संलग्न में हमें महाराज को, अक्षरधाम के संत को और अक्षरधाम के मुक्त को कैसे हमें दिव्य मानना है और कैसे हमें उसको अमायिक है ऐसा ही समझना है। यदि वो समझ पक्की नहीं होगी तो हमारी जो स्वरूप निष्ठा है तो वो हमारी स्वरूप निष्ठा पक्की नहीं होगी, और अति शुद्ध पक्की निष्ठा नहीं होगी तो जब आप देह छोड़ोगे तो आपको अन्य लोक में जाना पड़ेगा, पर महाराज के सामने आप खड़े नहीं रह पाओगे। लेके भी गए तो भी नहीं रह पाओगे, वहां से उसका पतन हो जाएगा उस जीव का, क्योंकि अभी भी भूसा भरा है। तो वो भूसा निकालने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि शुरुआत की है तो शुरुआत में ही प्रोज एंड कॉन्स, क्या करना है क्या नहीं करना है दोनों समझ लो। इसलिए यहाँ पे उन्होंने वापस उसको रिपीट किया है कि हम सबको महाराज की अनन्य निष्ठा पक्की करनी पड़ेगी। उसमें किसका दृष्टांत दिया है कि दूसरे एक संत का दृष्टांत दिया है कि मैंने पहले भी ये वचनामृत वगैरह सब पढ़ा है, समझा है, फिर भी जो गुणातीतानंद स्वामी ने जिस तरह से समझाया वो समझ तो अभी मेरी अभी पक्की हुई। स्वामी ने ही बनाया एक्चुअली। हाँ। बोले मैंने ही ये लिखा है। हाँ। मुझे कभी मालूम नहीं पड़ा कि महाराज हाँ। बोलते थे स्वामी बोलते थे मालूम पड़ा। हाँ, तो वो बात भी स्पष्ट कही है कि हमने सुना है, हमने लिखा है, हमने ग्रंथबद्ध किया है, हमने ही उसके सामने प्रस्तुत किया है, महाराज ने उसको अप्रूव किया है, फिर भी हमारी समझ आज पक्की हुई। मतलब क्या हुआ कि अनन्य निष्ठा पक्की तभी होएगी जब हम इस नीति नियम के मुताबिक हम चलेंगे, तो ही ऐसा गूढ़ार्थ मर्म है वो हमें समझ में आएगा। और एक वखत बात करी थी जेव्हा भगवान थे तेव्हा तो यथार्थ ओळखाय तो पूजा भगवान थोडा पडे नाही, तसा जेव्हा आज चालू तेव्हा जो ओळखाय पूजा चालू थोडावा રહે નહીં, છતાં એવી આ પ્રાપ્તિ થઈ છે તેવી યથાર્થપણે સમજાય, બીજી પ્રાપ્તિ કરવી રહે નહીં। અને ભગવાન પરોક્ષ મનાય છે, અગોચર મનાય છે, કયા એમ મનાય છે, મારું કઈ જાણતા નથી એમ મનાય છે, એ સર્વ અજ્ઞાન છે। અને જ્યારે સાક્ષાત્કાર ભગવાનના સ્વરૂપનો અતિ દ્રઢ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તેથી ભગવાન પરોક્ષ મનાય છે। ભગવાન તો જે મટીરિયલમાં જળરૂપી હોય એને દેખીએ એમ મારી સામુ અખંડ જોઈ રહ્યા છે। આવી રીતે પ્રત્યક્ષ ભગવાનના સ્વરૂપનું અપરોક્ષ એટલે સાક્ષાત જ્ઞાન થાય ત્યારે એ કાર્ય સારું પામવું રહેતું નથી, એ તો દેહ છૂટા પરમ પદને પામી રહ્યું છે। એ છેલ્લા પ્રકરણના બીજા વચનમાં यहाँ पे उन्होंने 15वीं बात का थोड़ा एक मुद्दा आगे लिया। अति शुद्ध पक्की निष्ठा के साथ साथ में उन्होंने और एक मुद्दा जोड़ लिया। ये सहजानंद स्वामी ने देह त्याग किया और गए ऐसा कभी मानना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारी साधना है तो संत के माध्यम से वो कभी अपरोक्ष होते ही नहीं, वो सामने ही है। जिस तरह से हम हथेली के अंदर जल की बूंद देखते हैं उसी तरह इस वक्त भी महाराज उस संत के माध्यम से
हमें अहर्निश देख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल कि दिनकर दादा कहाँ पे है? अमेरिका में है, बराबर है। और वसी भाई के प्रागट्योत्सव के समय पे उन्होंने अमेरिका से क्या बोला मुझे कि आपकी अस्खलित मंगल कृपा धारा बोलो। अभी वो है अमेरिका, मेरी तो कोई बात हुई नहीं, मैंने कुछ मैसेज भेजा नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पे क्या तैयारी की है प्रागट्योत्सव के लिए, कौन सी कविता बनाई है, वो सब उन्हें पता है। और उन्होंने पहले ही पेपर फोड़ दिया कि अभी आपकी अस्खलित मंगल कृपा धारा आप बोलो। है अमेरिका में, मैंने कोई मैसेज नहीं किया, मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन मेरी तैयारी है। और वो तैयारी उसी दिन उसी वक्त पूर्ण हुई थी, वो भी उनको मालूम। पहले 3 दिन चले गए थे और चौथे दिन में उन्होंने ये बात कही, क्योंकि वो जो कविता में बना रहा था वो कविता में बहुत सुधारा वधारा करना था, और उसके वजह से मैंने उसको होल्ड पे रखा था कि नहीं, मुझे जब भी स्फुरण होएगा तभी मैं उसको करेक्ट करूंगा और उसके बाद ही उसको मैं प्रेषित करूंगा। मैं बोलने वाला नहीं था, पर महाराज ने क्या किया, जबरदस्ती मेरा कैमरा ऑन करवाया। ऑन करो पहले उन्होंने होस्ट बन के मेरा कैमरा ऑन करवाया और फिर राजू भाई वाडेर के माध्यम से बुलवाया कि आपको कैमरा ऑन रखना है। और कैमरा ऑन रखने के बाद बोला अभी आपका वक्तव्य बताओ। मतलब उनको पक्का खातरी हो गया कि जो रचना मेरे माध्यम से बनी है वो पूर्ण हो गई है और अभी आपको उसको बताना है। तो यहाँ पे स्थान भेद, स्थल भेद ऐसा कुछ नहीं है। काका जी कहते हैं ना, हवा वहां पे भी है तो यहाँ पे नहीं है क्या, और यहाँ पे है तो क्या वहां पे नहीं है क्या। मतलब महाराज साक्षात हाजरा हजूर हमें हर क्षण देख रहे हैं और हमारी योगक्षेम के लिए, हमारे हित के लिए हमेशा हमें प्रेरित ही कर रहे हैं। और वो जो प्रेरित करते हैं तो वो भी हमारे अंतर के अंदर से ही हमें प्रेरित करते हैं। तो वो परोक्ष वाला ज्ञान नहीं है। परोक्ष में क्या होता है, हम कोई भी मूर्ति को घर में रखते हैं पर उसकी मर्जी क्या है वो कभी भी जिंदगी में भी हमें समझ में नहीं आता है। पर यहाँ पे क्या है, प्रकट मूर्ति। प्रकट मतलब कहाँ पे भी वो जाए फिर भी हमारे अंदर क्या गड़मथल चल रही है, हम कौन सी परिस्थिति में हैं और हमारे लिए हितकारी क्या है। यदि हमारा निरंतर ध्यास होएगा, जैसा बात नंबर 15 में बताया हुआ है, ऐसा निरंतर ध्यास होएगा तो वो हमारे लिए प्रत्यक्ष ही है। जिस तरह से हम हथेली में जल की बूंद को देख सकते हैं, उसी तरह वो महाराज हमारी रक्षा करने के लिए, हमारा हित करने के लिए और सच्ची प्रेरणा देने के लिए और इस संबंध में चिरस्थायी रहने के लिए, लास्ट सांस तक वो हमारे साथ ही है। ऐसा पहचान यदि हमारी हो जाती है तो अन्य कुछ पहचानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आज तक जितना भी किया है उसमें हमें 100% पता है कि हमने जब भी राम की भक्ति की थी, हमने जब भी कृष्ण की भक्ति की थी, अथवा हमने जब भी गणेश जी की भक्ति की या हनुमान जी की भक्ति की, उनकी मर्जी हमारे लिए क्या है वो कभी हमें पता नहीं चली है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण है। हर दिन हर रात या तो आप देखो तो हर पल में हम क्या कर रहे हैं वो उनको पता है, वो गए ही नहीं है। और वही बात यहाँ पे बताई है कि एक देह छोड़ा तो वो दूसरे देह के माध्यम से, दूसरे संत के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर प्रकट ही है। और उतना ही नहीं, वो पृथ्वी के ऊपर तो प्रकट है ही है, आपके हृदय में भी प्रकट है। आपके हृदय में वो प्रकट हो चुके हैं, लेकिन आपको वो सुनने की जो शक्ति है या तो जो सुनने का जो ध्यास है वो ध्यास आपने प्राप्त किया नहीं। वो ध्यास यदि आप प्राप्त कर लो तो तत्पश्चात आपको अन्य भगवान को पहचानने की जरूरत नहीं है, या तो अन्य साधु को भी पहचानने की जरूरत नहीं है। तो ये पहचान, ये पहचान की जरूरत है कि वो हर पल, हर समय, हर क्षण मेरे साथ में ही है, मेरे हृदय में ही विराजमान है और वो हमारा हित ही करने वाले हैं। ये पहचान की बात की है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि अन्य भगवान को पहचानने की जगह पे यदि इनको पहचान लिया तो आपका जीवन इतना सुगम हो जाएगा। जैसे आप हाई स्पीड ट्रेन में, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में आप बैठ गए, बैठ नहीं, अभी तो लेटे लेटे जा सकते, लेटे लेटे, वो भी फुल
फुल स्पीड में जा सकते हो, तो आपका जीवन भी ऐसे ही स्मूथ जाएगा, आसानी से सोते सोते जाएगा। वो कहते हैं ना कि मंदिर में मेरी आज्ञा से यदि आप बैठे बैठे खाओगे तो भी अक्षरधाम को पाओगे। तो वो बात यहाँ पे की है कि यदि आपने उस भगवान को जैसा है वैसा यथार्थ महिमा उस भगवान का और संत का पहचान लिया, तो अब कुछ पहचानने की जरूरत नहीं है। तब आपके अंदर से जो प्रकट होता है वही फाइनल है। जो संत मेरा आत्मा है और उनकी जो प्रेरणा है वो जो मुझे हो रही है और उसको मैं पहचान रहा हूं, तो और कुछ पहचानने की जरूरत नहीं है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने सीधी रूप से और इनडायरेक्ट रूप से भी दोनों तरीके से बता दी। और वही बात वशी भाई भी, वही बात भरत भाई भी, वही बात दिनकर भाई भी, वही बात जसभाई साहेब भी, वही बात गुरुजी भी, वही बात हमारी जो गुणातीत ज्योत की जो बहनें हैं हंसा दीदी वो भी, आनंदी दीदी वो भी वही बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम उनके संपर्क में आते हैं, जैसे जैसे ऐसे समैया होता है, जैसे कि सूरत में अभी समैया होने वाला है, वो समैया में पूरे इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड से लोग आएंगे सूरत के अंदर। तो सभी फिरके के सभी गुरुओं के शिष्य होंगे। तो सभी का मानना क्या है? एक ही है कि हम सब एक है और जो हमारा गंतव्य भी एक ही है, हम अलग नहीं है। हम माइक जगत से नहीं है, माइक जगत में मैं और तू होता है, लेकिन अमाइक जगत में क्या है? हम सब एक ही है, यूनिटी है। और वो यूनिटी को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, यूनिटी को वो सभी संत मिलकर प्रत्यक्ष कर रहे हैं। हम अलग है ही नहीं। अलग चौखा बनाया मतलब आप माइक हो गए, मतलब आप भी डूब गए, आपके साथ वालों को भी आपने डुबा दिया। तो अलग नहीं है, हम एक ही है, हमारी यूनिटी है और सूरतपना है, हमारा आपस में सम सूरत भाव और एकता है। उसको दर्शाने के लिए हमारे पास में ऐसी पहचान है। कैसी पहचान? यथार्थ जैसा है वैसा, ऐसी पहचान। हम सब अमाइक है और अमाइक है, उसमें मेरा तेरा मैं तो वो सब होता ही नहीं। झगड़ा नाम की चीज ही नहीं है, डिस्प्यूट नाम की चीज ही नहीं है, द्वंद्व नाम की चीज ही नहीं है। जहां द्वंद्व नहीं है वहां डिस्प्यूट नहीं है, जहां डिस्प्यूट नहीं है वहां पे क्या होता है? सम सूरत भाव एकता होता है। तो वो बात, वो मुद्दा यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बताया है कि ऐसे भगवान के स्वरूप का अति दृढ़ प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान हो जाए। उन्होंने शब्द बहुत ज्यादा यूज किए हैं, पर बात यही है कि यथार्थ पहचान जो हो जाए कि मेरे अंतर में बसे हुए, मेरे हृदय में स्थित जो प्रभु की मूर्ति जो ये संत ने दी है, वो ही सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी मेरे साथ है और वो ही मेरा आत्मा है, वो ही ब्रह्म स्वरूप है और वो ही ब्रह्म स्वरूप करके वो परब्रह्म की मेरी सेवा जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। तो सब कुछ अंतर्मुखी हो गया, सब कुछ मौन के हिसाब से हो गया, सब कुछ प्रेरणा के हिसाब से हो गया। तो कुछ करना बाकी रहा। क्या करना बाकी रहा? निरंतर सत्संग। ये स्थिति आई हुई है, फिर भी निरंतर सत्संग। बात नंबर 15 में यही बताया है। आप सदगुरु हो, आपको लाखे चेला है, फिर भी आपको क्या करना है? निरंतर सत्संग करना है। तो वो बात यहाँ पे 17 नंबर में फिट हो जाती है। आप सदगुरु भी हो गए, आपके पीछे कई चेले हैं, आपके पीछे कई मंदिर है, आपके पीछे और सदगुरु भी क्रिएट हो गए, फिर भी आपको आपके आखिरी श्वास तक क्या करना है? निरंतर सत्संग करना है। तो इसी के साथ में आज का गुणातीतानंद स्वामी की बातों का चैप्टर यही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। ओके, सर 85-84 का ये है पेज है। एक देशाचा पण छोड़ी दो, काकाजीनी परवाडी 27 नंबर। बड़ो हाँ, शुरू कीजिए। काकाजीनी परवाडी
84 પેજ 47 નંબર. એક દેશસ્થ પડું છોડી દો. પહેલી વાર તમારો ભૂતકાળ સદંતર ભૂલી જાઓ. આ અક્ષરધામની જ સભા છે. યોગીજી મહારાજને જેને જેને જોયા એના હૃદયમાં એ અખંડિત છે, ગયા નથી. એ ભાવનાથી તમે એકમેકના ઓતપ્રોત થાય. હું જે બોલું છું તેના પર તમારી બુદ્ધિથી તર્ક વિતર્ક નહીં કરતા, ખાલી પ્રીતિયુક્ત વિશ્વાસ લાવી સાંભળજો. યોગી મહારાજ કે યોગી બાપા તમારા હૈયામાં અખંડિત જ છે. બહાર મૂર્તિમાન સ્વરૂપે આ ગુફા પર બેઠેલા પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપોમાં પણ છે જ. એમને તમે જોઈ પણ શકો છો. તો એમાં માઇક ભાવ અને મનુષ્ય ભાવ સદંતર છોડી દો. નામ રૂપ ભૂલી જાઓ. તો ચૈતન્ય ભાવમાં રહેવા છે. આપણે બ્રહ્મનો ગુણ મેળવવો છે. સૂર્ય સમાન કૃપા સંબંધમાં આવ્યું. મોટા પુરુષ માનીને કંઈક સેવા કરી, બહુ થઈ ગયું. એનામાં દોષ દેખાય, પણ ચિંતા નથી કે તમારા પર અનુગ્રહ છે એટલે તમને બોલાવ્યા છે. એ તમે અક્ષરધામમાં જ અખંડ બેઠા છો. તમારી વાસના સ્વભાવ અંધારી ભક્તિ કરવી વગેરે બધું સળગાવી દેવું છે. માટે ચૈતન્યમાં માધ્યમની પહેલી ફરજ એ છે કે તમારું મશીન ટોટલ બંધ કરો. મરીને મહામૃત્યુ પછી જ આ વાત સાંભળી શકશો. તમારે જહાપડ કરવાનું રહ્યું નહીં. જ્યારે તમને દેખાતું થઈ જાય ત્યારે કરજો. માટે તમારા સ્વરૂપમાં નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખો. પુરુષોત્તમના અસલી સામર્થ્યપણાને હજી કોઈ પામ્યું નથી. એ એક જ અદ્વિતીય ગુણાતીત અને એ માધ્યમ એ આપણું આદર્શ તત્વ છે. અને એ પરંપરા ગુણાતીત ભાવનાને બુદ્ધિમાન મૂકી ગયા. અવ્યક્ત અક્ષરનું અત્યારે સુધી વર્ણન હતું, પણ વ્યક્ત મૂર્તિમાન અક્ષર શાસ્ત્રી મહારાજે અને યોગી મહારાજે એની દૃષ્ટિમાં આપણને લઈને એકાંતિકના પ્રસંગની આપણને સૂઝ એ તમે કેટલા બધા ભાગ્યશાળી છો કે આ સમાજમાં તમે એન્ટર થઈ ગયા. જૂનાગઢના જોગીએ પ્રાપ્તિ મફતમાં આપી, તો હવે અહો ભાવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. અહો મારી લોટરી લાગી એ અહો ભાવ. જડ બુદ્ધિ છોડો, તર્ક છોડો, ભાવના હૃદય મુક્તતાથી શરૂ કરો. બુદ્ધિથી વર્તે માણસ, બુદ્ધિ ઉપર જીવે એ જાનવર. પણ જો બુદ્ધિના 5 દોષ નડે છે તોય બુદ્ધિમાં નીકળી જાઓ. ચૈતન્ય માધવને ભેદ દ્રષ્ટિ હોઈ શકે જ નહીં. મધદરિયા ઉપર આકાશ ને નીચે પાણી એ જ દેખાય. તેને જ્યાં જુએ ત્યાં રાખી છું. આ ભાવનામાં તમે છો. એમાં એન્ટ્રી પહેલા પછી સર્વદેશીયતા શરૂ થશે. નિર્વિકલ્પ ઉત્તમતી નિષેધ ગમશા એ આખો સંપ્રદાય માગે છે, પણ અહીં કોઈની મોહમ્મદ નથી. ત્યાં ગુણાતીતની જરૂર પડશે. રૂપ અક્ષર એ રૂપ ગયો થતો એમાં એન્ટર થઈ પરબ્રહ્મની ઉપાસના કરે તો એ અધિકાર. યોગી ત્યાગીનો કોઈ મેળ નથી. બુદ્ધિ છોડો તો જ આ વાત તમે સ્વીકારી શકો અને તમારી જાત પર જ અખતરો કરો એવી આ તમારી ગમ છે. જો તમારે કરવું હોય અંધારી ભક્તિ બહુ કરી એ છોડો, એને ચોકડી મારો. ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે. વૈભવશાળી સત્સંગની તમારી બારાકડી મૂકી દો. એ મૂલ્યાંકનો છોડો. ખરેખરી મોટો શું છે એની બી સમજો. ભગતજી, જગાસ્વામી, દરજી જેમો છે, પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ એને દંડવત કરે અને એ યોગી મહારાજે ગુરુમુખી ઉપનિષદનો વારસો એમને આપ્યો. તો સર્વદેશીના બચ્ચા પણ સર્વદેશી હોવા જોઈએ. મૂર્તિ પર હોવા જોઈએ. એ દ્રષ્ટિ રહિત હોવા જોઈએ. કોઈનો વિરોધ હોય નહીં. મને ઉમળકો છે કે આ અક્ષરધામની સભા છે, તો તમે એક નિશ્ચિતપણે છોડી દો. આજે સંકલ્પ કરો એ પછી પ્રતિજ્ઞા કે આ અક્ષરધામની જ સભા છે, મારું જ બાકી છે, મારે જ કરવાનું. સૂચનાનું જડાતું
સત્તાના વચ્ચે સ્વરૂપ ઓળખો ને ટોટલ અજ્ઞાનીમાં અજ્ઞાની ઉલટું બનીને રહો. મહારાજ ને સ્વામી સૌને આવું કરી આપે એક અમારી પ્રાર્થના. સજાન મહારાજ જય. तो यहाँ पे भी प्रकरण 8 की 17वीं बात आई, प्रत्यक्ष स्वरूप का यथार्थ ज्ञान आपके अंदर प्रकट होना चाहिए, शब्दों वाला ज्ञान नहीं. यहाँ पे जो बताया हुआ है वो पंच विषयों से परे उठने की बात बताई है कि आपको जो मिला है उसका यदि यथार्थ ज्ञान हो गया है तो आपको अपने आप को कहाँ कहाँ संभालना है, और वहाँ पे नहीं संभालोगे तो बार बार उसी में आप अटके रहोगे, और उस अटके रहने की वजह से आपका जो ये जीवन है हो सकता है शायद कम पड़ जाए. वासना का जो पहाड़ है वो इतना बड़ा है कि यदि उसके ऊपर आपने काबू नहीं पाया तो आप ये प्रत्यक्ष स्वरूप का जो लाभ जो होना चाहिए कि प्राप्ति, प्रत्यक्ष स्वरूप से हमें क्या मिलेगा, प्राप्ति क्या है तो के अक्षरधाम, जीते जी अक्षरधाम. तो ये जीते जी अक्षरधाम भी खो दोगे और मृत्योपरांत जो अक्षरधाम मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा. वो दोनों बात यहाँ पे काकाजी महाराज ने बताई है, और गुणातीतानंद स्वामी भी वही बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष स्वरूप का यदि यथार्थ ज्ञान आपको नहीं हुआ है तो आप उसके लिए पुरुष प्रयत्न करो. तो ये पुरुष प्रयत्न क्या है कि निरंतर सत्संग करो. अभी बात नंबर 15 यहाँ पे लागू होती है. हम ये मान के चलते हैं कि मैंने आज तक जो सत्संग किया है उसमें मैंने जो जाना है और जिसके ऊपर मैं चला हूँ वही पर्याप्त है, पर ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि वहां पे सुखमुनि की बात कही कि वो क्या मान्यता रख के चल रहे थे, और गुणातीतानंद स्वामी का सत्संग किया तब उनको क्या उजागर हुआ, मतलब उजागर क्या हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ कि मेरी खामी अब तक क्या थी. वो खामी को दूर करने के लिए वो तत्पर हुए. वही यहाँ पे काकाजी महाराज भी वही बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होएगा तो ये जो महामूला जो अवसर है वो अवसर आप खो दोगे. तो महामूला अवसर खोने के बजाय हमें क्या करना है, निरंतर सत्संग करना है. निरंतर, यहाँ पे शब्द उन्होंने यूज किया है बात नंबर 15 में कि निरंतर सत्संग करना है. किसको? सदगुरु है उसको भी, बाकी की तो बात ही छोड़ो. जो सदगुरु होके घूमता है, जिसने 500,000 मंदिर भी बना दिए हैं, उसको भी निरंतर सत्संग करना है. और वो बात कौन बता रहे हैं? महंत स्वामी भी बता रहे हैं, जसभाई साहेब भी बता रहे हैं, दिनकर भाई भी बता रहे हैं कि वो कितने भी स्वरूप हो गए, कितना भी उन्होंने मंदिर बना दिया, कितने भी समैया कर दिए, फिर भी वो क्या करते हैं? निरंतर सत्संग करते हैं. और दिनकर भाई की दिनचर्या देखोगे तो पागल हो जाओगे. उनका तो एक मोबाइल फोन के अंदर धुन चालू ही रहता है. तो इसके साथ में हम आज का ये सत्संग यहीं संपन्न करते हैं. बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय. धाम धमी मुक्तो की जय जय जय. सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय. मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय. Swami
स्वामी